Peter, wait. What happened, Sam? Peter, today Roy sir is going to start with one new lesson, that is circle. But I heard that circle lesson is very tough. I don't think so, Sam. When Roy sir will teach us, all the doubt will automatically get clear. Okay, so let's move to the school. Oh, it's 9 o'clock and exactly on 9:05 my lecture will be in 10th standard. May I come in, Sir Roy? Oh yes Neha, please come in. Sir Roy, I heard Peter and Sam. They were talking on the ground that you are going to start with circle lesson, and circle lesson is very difficult. Not at all Neha, circle lesson is very easy if your concepts are clear. Let's move to the class and I'll teach everything clearly over there. Okay, sir. Good morning, sir. Very good morning all of you. Have your seat. Now student, today I am going to teach you circle lesson. But today's lecture will be more interesting because at the end of the lecture I'll ask you one question and those students will able to answer that question. I will announce their name in the next video. But Sir Roy, how to answer the question? To answer the question, you have to watch this full video. At the end of the video, when I'll ask the question, you have to comment in the comment box that answer and also write your name below it so that I can announce that name in the next lecture. Wow, sir. That means I will comment the right answer in the comment box and below that I will write my name. Yes, Sam, you are correct. Let's start the lecture without wasting the time. Okay, let us check out the basic concept of circle. This is a circle and the point which appear in the middle is called the center of the circle. ये जो point बीच में appear हुआ है हम इसे बोल सकते हैं center of the circle. Center of the circle से अगर कोई line pass हो जाए उसे हम बोलेंगे diameter. A line passing through the center of the circle is known as a diameter. The definition of diameter is like this: a line segment which pass through from the center of the circle and whose both the point lie on the circle is called diameter. So यहाँ पे हमने देखा diameter का definition. Let us move to the next concept. Next concept है हमारा chord. Now we will learn what is chord. Now diameter is also a chord, but diameter is the longest chord of the circle. हम देखेंगे कैसे. तो see this is a chord. और इसे हम कुछ इस तरह से define कर सकते हैं. A line segment whose both end points lie on the circle is called the chord. Okay, so जो center से pass हुआ वो भी chord है, but वो सबसे बड़ा chord है. So we can write it like this: diameter is the biggest chord of the circle. Let us move to the next concept. The next concept is very interesting. It's about the similar circle. Now यहाँ पे हम देखेंगे दो सर्कल एक दूसरे से सिमिलर कैसे होता है. जो सर्कल एक दूसरे से सिमिलर है मीन्स कॉन्ग्रुएंट है, उनके रेडियस हमेशा सेम होंगे. द कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑलवेज हैव द सेम रेडियस. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ अ रेड सर्कल इज सिमिलर टू द रेडियस ऑफ अ ब्लू सर्कल. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अ टायर ऑफ अ साइकिल. जो एक साइकिल के दो टायर होते हैं वो एक दूसरे से हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्योंकि उनका जो रेडियस होता है वो हमेशा सेम होता है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेंटर ऑफ अ टू सर्कल आर सेम बट द रेडियस इज डिफरेंट. तो इसे हम क्या कहते हैं. नाउ इसे हम रीड कर लेते हैं. सर्कल हैविंग द सेम सर्कल बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल. इसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे. इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि डार्ट. जो डार्ट होता है या फिर आपने कभी मेले में ये देखा होगा कि जहाँ पे हम लोग गन से फायर करते हैं और मिडल पे एम करते, वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा बना हुआ होता है. लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट कंसेप्ट. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट इंटरसेक्टिंग सर्कल. Now what is the intersecting circle? Let us read the definition. Coplanar circle having 2 points in common are called intersecting circle. ये तो intersecting circle है क्योंकि इसका जो दो पॉइंट है वो एक दूसरे से कॉमन में है. यहाँ पे हो जाता है हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर.
With all this concept, we will move to the practice set 3.1 and we will learn one more concept in this sum itself, that is the concept of the tangent. और वो कंसेप्ट मैंने इसीलिए वहाँ पे नहीं सिखाया क्योंकि वो हमारे फर्स्ट सम में ही है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस सम के थ्रू ही वो कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे. लेट अस रीड द क्वेश्चन. इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर. लाइन ए बी जो है यहाँ पे टेंजेंट का काम कर रहा है एंड वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दे हैड आस्क्ड अस 4 क्वेश्चन. उन्होंने 4 क्वेश्चन हमसे पूछा है. लेट अस चेक इट आउट वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई. तो एंगल सी ए बी का मेजर कितना है और क्यों. हमेशा याद रखना कि अगर कोई रेडियस है टेंजेंट को टच कर रहा है तो उसके थ्रू अगर कोई एंगल बने वो 90 डिग्री बनेगा. ये हमें थियरम बताता है. तो हम यहाँ पे इसे चेक करेंगे और लिखेंगे कैसा, देखते हैं. पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये तो दिया हुआ ही है, दैट इज गिवन. एंड जो लाइन ए बी है यहाँ पे टेंजेंट का काम कर रहा है, तो लाइन ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. ओके. एंड आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि सेगमेंट ए सी जो है वो रेडियस है, तो सेगमेंट ए सी इज द रेडियस. सो हम यहाँ पे इजीली बोल सकते हैं, अगर ये सारे कंडीशन क्लियर है तो एंगल सी ए बी जो है ये 90 डिग्री है. ये हमें बताता है टेंजेंट थियरम. ओके. सो लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, दैट इज what is the distance of a point C from line AB and Y. अब बोला है C से, आपको डायग्राम में देखते रहना स्टूडेंट, C से टेंजेंट AB का डिस्टेंस कितना है और क्यों. तो उसके लिए अगर मुझे रेडियस का पता चल जाए तो मैं डिस्टेंस इजीली बता सकता हूँ. यहाँ पे रेडियस AC जो है वो 6 सेंटीमीटर है. तो अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो सेंटर C से लेके टेंजेंट AB तक का डिस्टेंस भी ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर होगा. उसे हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे. The distance of the center of the circle from the tangent is equal to the radius of the circle. वो हमेशा इक्वल होगा, इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि the distance of a point C is 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हम इसे इस तरह लिखेंगे, the distance of a point C from line AB is 6 centimeter. So let us move to the next part, that is part 3 of the same sum number 1. So before moving there, if you are new, subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको आगे सम इसी तरह सीखना है तो. Let us read the question here. क्वेश्चन को रीड करते हैं. डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी सी. अगर आप यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डॉट सी है, ए है और बी को जोड़ने से बन जाएगा यहाँ पे ट्राइंगल. और जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी प्रूव थ्रू द टेंजेंट थियरम दैट एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें, दैट इज हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर दैट इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर. तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर जो इन्फॉर्मेशन में दिया है 6 और ए सी जो इन्फॉर्मेशन से हमें मिलता है कि रेडियस भी है 6, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. तो यहाँ पे हम फाइनली मिल जाएगा 2 टाइम्स 6 स्क्वायर. ये मिला है बी सी स्क्वायर, मगर हमको चाहिए बी सी. अगर आपको बी सी चाहिए तो आपको कर देना पड़ेगा रूट ऑफ 2 इंटू 6 स्क्वायर. 6 स्क्वायर का जो रूट होता है वो तो 6 होता है, बट 2 का रूट होगा रूट 2. तो फाइनली जो हमें आंसर इधर मिलने वाला है वो है 6 रूट 2. हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर. फाइनली हमें यहाँ पे थर्ड पार्ट क्लियर कर लिया है और अभी हम पहुँचेंगे फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट में हमें बताना है कि मेजर ऑफ एंगल ए बी सी कितना है. एंगल ए बी सी का पता लगाने के लिए आपको ज़रा सा आपके लेसन को रिवाइंड करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा पिछले लेसन, दैट इज लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम. और वहाँ पे जो थियरम था 45, 45, 90 का, उसे चेकआउट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने देखा था कि साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो 45 डिग्री है.
और ये हमें मिला कन्वर्स ऑफ 45 45 90 डिग्री थियरम से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सम नंबर 2 ऑफ द प्रैक्टिस सेट 3.1। यहाँ पे सम नंबर 2 पे आते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट R। Segment RM and segment RN are tangent segment touching the circle at M. And if OR is equal to 10 cm and the radius of a circle is equal to 5 cm, then you have to find 3 things over here. तो एक एक करके हम सब सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर लिया है। सो पहला चीज़ हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, ज़रा उसे देखते हैं। What is the length of each segment? हमें यहाँ पे length of each segment find out करना है, तो उसे हम देखते हैं कि किस तरह हम find करेंगे ना। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वहाँ पे हमें सबसे पहला चीज़ जो लेना है कि यहाँ पे पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसे हम लिख देंगे कि पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट RM and segment RN are the tangent to the circle। जो सेगमेंट RM है और RN है ये tangent है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सम को इजीली समझना है तो जैसे मैं रीड कर रहा हूं आप डायग्राम की तरफ भी देखो तो आपको सम इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे OMR इज इक्वल टू ONR इज इक्वल टू 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है और आपको पता है टेंजेंट रेडियस से मिलेगा तो एंगल जो है वो 90 डिग्री ही होगा। ये हमें टेंजेंट थ्योरम ने सिखाया है। आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज फर्स्ट पार्ट। इन ट्रायंगल OMR, एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो आपको इजीली डायग्राम में दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का ट्रायंगल है। सो हियर वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अदर साइड स्क्वायर दैट इज OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि OR जो है 10 दिया हुआ है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू OM जो हमें पता है 5 स्क्वायर है प्लस RM स्क्वायर। यहाँ पे हम इजीली RM स्क्वायर फाइंड करेंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर है 100 एंड 5 का स्क्वायर है 25। सो RM स्क्वायर विल बी 100 माइनस 25 दैट इक्वल टू 75। ये मिला हमें RM स्क्वायर। हमें ढूंढना है RM, तो RM होगा रूट ऑफ 75 that will be 5√3 centimeter. Here we'll learn one more concept, that is the external point. Through the external point, if the two tangents are drawn, then both the tangents are congruent. So here we can see it कि RM और RN जो है ये दो tangent है जिसका external point same है, that is R. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि RM इज इक्वल टू RN एंड इफ RM इज इक्वल टू 5√3, यू नो इट वेरी वेल। सो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि RN जो है वो भी 5√3 है। सो वी कैन से इट लाइक दैट RM इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम सम, बट वहाँ पे मूव होने के पहले हमें फिर से प्रीवियस लेसन की तरफ जाना पड़ेगा, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। एंड इन दैट पाइथागोरस थ्योरम वी हैड लर्न अबाउट 30 60 90 डिग्री थ्योरम। उसे हमें याद करना पड़ेगा और उसका कंसेप्ट भी हमें याद करना पड़ेगा। व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ 30 60 90 कि 30 के सामने वाला साइड इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। 30 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, ये हमें याद रखना है। सो इसी कंसेप्ट से हम इस सम को सॉल्व करेंगे। लेट अस रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO? MRO का मेजर कितना है? तो MRO के मेजर को फाइंड करने के लिए आपको चेक करना है कि उसके सामने वाला साइड क्या हाइपोटेन्यूज का हाफ है। तो आप देख सकते हो कि MRO के सामने वाला साइड है 5 और हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पे OR वो है 10। सो अगर वो मैच हो जाता है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि MRO जो है वो 30 डिग्री है। ओके,
नाउ लेट अस चेक दिस आउट कि अगर ये 30 डिग्री है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि MRN कितना है। तो आपको पता है कि MRO जो है वो MRN का हाफ पार्ट है। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि MRO इज हाफ ऑफ एंगल MRN। तो इसी कंसेप्ट के थ्रू अगला पार्ट भी सॉल्व करेंगे कि व्हाट इज अ मेजर ऑफ एंगल MRN। So MRN is equal to MRO plus NRO which equal to 30 plus 30 कि दोनों सेम होगा। वहाँ पे आपको एंगल बाइसेक्टर जैसा भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर दोनों एंगल 30 को मैं ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा 30 plus 30 विच इक्वल टू 60 डिग्री। सो हमें इजीली मिल जाएगा कि MRN जो है वो 60 डिग्री है। होप यू अंडरस्टैंड दिस सम वेरी वेल। लेट अस मूव टू द सम नंबर 3, बट बिफोर मूविंग देयर आई विल अगेन टेल यू दैट इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। इस वीडियो को लाइक करो और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है। ओके, जस्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 3। सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर द टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। प्रूव दैट OR बाइसेक्ट एंगल MRN एज वेल एज MON। तो यहाँ पे दो चीज़ हमें प्रूव करना है कि OR जो है वो किसको किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल MRN को। डायग्राम को आपको अच्छे से देखना है और MON को। ओके, तो यहाँ पे एक सिंगल बाइसेक्टर है जो दोनों एंगल जो एक दूसरे के ऑपोजिट में हमें दिखाई दे रहा है उसको वो बाइसेक्ट कर रहा है। लेट्स कम टू द प्रूफ। पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इजीली। सेगमेंट RM एंड RN आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, है ना। RM और RN जो है वो टेंजेंट है, ये दिया हुआ है। सो सेगमेंट RM जो है वो RN से कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके पिछले सम में ही हमने सीखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट क्रिएट होगा, जो दो टेंजेंट क्रिएट होगा वो हमेशा इक्वल मेजर का होगा। सो हम यहाँ पे इजीली लिख देंगे इसे कि RM है जो RN से कॉन्ग्रुएंट है। अब आ जाते हैं हमारे ट्रायंगल की तरफ। इन ट्रायंगल OMR एंड ONR, यहाँ पे जो पहला चीज़ हमें मिला था उसी को फिर से रिपीट करके लिख देंगे कि RM कॉन्ग्रुएंट टू RN। नेक्स्ट OM इज ऑल्सो इक्वल टू ON। अब ये हमें कैसे मिला, OM जो है वो ON से क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सिमिलर, मतलब सेम सर्कल के। ओके, सो अगर ये रेडियस है एक ही सर्कल के तो ऑब्वियसली ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब दो चीज़ मिल चुका है, एक और चीज़ लिखना है कि यहाँ पे जो सेगमेंट OR है आपको दिखाई दे रहा है, दोनों ट्रायंगल में जो OR है ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम, और वी कैन से इट एज अ कॉमन साइड। अगर ये तीनों कंडीशन क्लियर है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ट्रायंगल OMR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONR। अगर यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है सो मैं इसे लिखूंगा कि बाय SSS टेस्ट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके ना, अगर ये SSS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, हमारे पास बाकी बचते और दो एंगल जिसे हम लिख सकते हैं कि एंगल MRO। ध्यान देना ट्रायंगल की तरफ, ट्रायंगल MRO इज इक्वल टू ट्रायंगल NRO। ओके, सो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट थिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे OR हो गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRN। नेक्स्ट चीज़ को देख लेते हैं कि MOR, वापस से आपको डायग्राम को देखना है, और NOR। यहाँ पे MOR जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा NOR से, और फिर से हम बोल सकते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया
कि जो बाइसेक्टर है OR उसने क्रिएट किया है और डिवाइड किया है MON को 2 इक्वल पार्ट में। फाइनली वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल MRN एंड एंगल MON। होप आपको यहाँ तक सभी सम अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको सारे सम अच्छे समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हाँ, अगर आप नए हो तो अभी के अभी वो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट कीजिए। ओके, सो आ जाते हैं हमारे सम नंबर 4 पे। What is the distance between two parallel tangent of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer. Now यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है। इस सम में हमें रेडियस दिया है 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक अपर साइड में एंड एक लोअर साइड में, और हमें दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस ढूंढ के बताना है। आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। सपोज AB एंड CD आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अगर ये टेंजेंट है सर्कल के, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OA एंड OC बी द रेडियस। OA और OC क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए। बट इस हिसाब से अगर मैं देखूं कि रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं तो एंगल बनते हैं 90 डिग्री के, तो मैं लिख सकता हूं एंगल OAB इज इक्वल टू OCD। आपको डायग्राम को देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे मुझे 90 डिग्री मिल चुका है। और इसी तरह आप बोल सकते हैं कि अगर दोनों 90 डिग्री है तो OAB प्लस OCD इज इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। अब हमने ये 180 डिग्री क्यों फाइंड किया उसे लिखते, बट दे आर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल AC on the line AB and CD. Therefore segment AB is parallel to CD. जो AB है वो पैरेलल है किससे? CD से। ओके, अगर ऐसा है तो मैं फाइनली इसे लिख सकता हूँ कि AC इज इक्वल टू AO प्लस OC। अगर स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AC इज इक्वल टू AO प्लस OC, और AO प्लस OC क्या होएगा? 4.5 प्लस 4.5, क्योंकि दोनों रेडियस है। और 4.5 प्लस 4.5 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और आपको फाइनली मिल जाएगा कि AC जो है मीन्स डिस्टेंस AC, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट इज 9 सेंटीमीटर। फाइनली इसे आप प्रेजेंट करने के लिए इसे लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। Sir Roy, today's session was very interesting. But sir, now it's time to ask question. I know, Peter. Today's question is, what is the longest chord of the circle known as? Sir, I will answer this question in the comment box. Me too. So that's all for today. I'll meet you in the next lecture. Thank you, sir. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप सभी का हमारे तहे दिल से धन्यवाद है हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।